So Galatians chapter 4, we'll try to do up to 9 or maybe up to 11 also. आज जो है गलातियों का चौथा अध्याय और उसका 1 से 11 तक हम अध्ययन करेंगे. So just want to ask, just so that we all know what we are studying. मैं कुछ आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ कि मैं समझ सकूं कि आप जो हमने अध्ययन किया है उसके बारे में. Okay, so brothers and sisters, this place Galatia is, anybody knows which place it is, the present area or country? Anybody knows? Anybody can आप tell? लोगों में से कोई जानता है क्या जो गलेशिया जो जगह है ये आज के दुनिया में कहाँ स्थित है? Is it near Israel? Is it in Israel? क्या वो इज़राइल में है? Is the Apostle Paul talking to people in Israel? That Galatia is it in Israel? क्या पौलुस प्रेरित पौलुस जो है इज़राइल के लोगों से बातें कर रहा है? Anybody can say? क्या कोई बता सकता है? Don't worry if it is correct or wrong, that we're not saying, but just make an attempt. Yeah. Anybody can just unmute and say. Yeah, I'll put the picture. So मैं जो मानचित्र है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ. Turkey. Yes. Turkey. So this area is Turkey. Okay. So he's not in Israel, but Israel is here. Okay. He has gone from Israel to Galatia, which is Turkey, and then he has got churches in Greece, and then Rome is in Italy. So we see that all these countries. Okay. So right now we're talking about Galatia, which is which is in Turkey. तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जो गलातिया जो जगह है वो तुर्की देश में है और वैसे ही जो अन्य देशों में प्रेरित पौलुस ने यात्रा किया जैसे यूनान में और ये जो है यूनान और ये इटली जहाँ रोम जो है स्थित है. Okay. We know that Turkey is right now under a lot of problems because of the earthquake. जो भूकंप हुआ है वो आपने सुना होगा जो तुर्की में भूकंप हुआ है और उसके कारण लोग बहुत ही कठिनाई में गुजर रहे हैं. So this is the area. Galatia is in that place. जो गलातिया है वो तुर्की में स्थित है. Okay, and it is not to one church, but there are quite a number of churches in Galatia. So he is speaking to all the churches. और गलातिया में बहुत सारे ऐसे कलीसिया थे. वो एक ही कलीसिया से वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे कलीसिया हैं उन सब से वो जो पौलुस है वो बात कर रहे हैं. So other thing is, anybody we can tell why the Apostle Paul is writing to Galatian church, and what is he talking about? क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि जो प्रेरित पौलुस हैं वो क्यों गलातियों के लोगों से बात कर रहे हैं और क्या उद्देश्य था उनका जिसके कारण वो उनसे जो है बात कर रहे हैं. I'm asking all this because we are studying a book. मैं ये सब इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जो है हम अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में. So that when we read it afterwards, in the other years, we will have a background of what we are learning. तो मैं इसीलिए ये सब पूछ रहा हूँ क्योंकि हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आगे जाकर जब आप खुद इसको पढ़ेंगे तो आपको इससे सहायता मिलेगा. So anybody can say what is the purpose of his letter and what is the message he is putting in Galatian letter. तो क्या आप बता सकते हैं किस उद्देश्य से जो है प्रेरित पौलुस ने ये लिखा है और ये जो संदेश जो उन्होंने भेजा है ये किस चीज के लिए है? So don't worry
if it is if whether it is correct or not, don't worry about that. We are all in one family, you know. So when we ask our children whether this, when they say something, we don't say no, you don't know it. We don't say like that. It is तो हम सब just so that everybody will learn. We are a family. हम सब एक ही परिवार के हैं। जैसे हमारे बच्चे जब हम उनसे कुछ पूछते हैं और वो गलत बताते, तो हम उनसे ये नहीं कहते कि चुप बैठो क्योंकि तुम नहीं जानते हो। तो वैसे ही हमारा एक परिवार है, तो हम खुलकर बोल सकते हैं। Yes. Because they were giving some other kind of gospel, like trying to make some kind of trouble, maybe. Once again, brother. Because I think the churches were not actually preaching the right gospel. Absolutely, you're right. So that is the main thing. Okay, the Apostle Paul, we know that from the chapter 1 onwards, the Apostle Paul had preached the true gospel, and they accepted it. But some other false teachers of the Jews came and taught them about the law and circumcision, and diverted their mind. तो जैसे ब्रदर सिरिल ने बताया, एकदम ठीक बताया उन्होंने कि प्रेरित पौलुस ने उन्हें जो सच्चा सुसमाचार उन्हें बताया था उन्होंने, और उसको उन्होंने स्वीकार भी किया था। लेकिन बाद में जो यहूदा से जो यहूदी शिक्षक आए और उन्होंने उनको व्यवस्था के अधीन जाने के लिए कहा और खतना के बारे में उन्होंने सिखाया उन्हें, तो वो उसके पीछे चले गए। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने उनको ये पत्र लिखा। So this letter to Galatians has got lot of truth and revelation. तो इस जो पत्र है, इसमें बहुत सारा जो है सत्य इसमें छिपा हुआ है, और जो बहुत सारे बातें हम इनसे सीख सकते हैं। The Bible says you shall know the truth and the truth shall make you free. क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा, स्वतंत्र करेगा। These truths can cause a liberation in our life. तो ऐसे जो सत्य जब हम जानते हैं, वो हमारे जीवन में स्वाधीनता भी लेकर आती है। Okay, and everybody must have heard of Martin Luther. आपने सबने सुना होगा मार्टिन लूथर, जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे। Because of him, the Reformation took place, and he found out some truths in this particular book. और जो मार्टिन लूथर हैं, उनके कारण ही बहुत सारे ऐसे जो सत्य है उसका प्रकटीकरण हुआ। And you know what he said about this Galatians? और उन्होंने जो है गलातियों के पुस्तक के बारे में क्या कहा, आप जानते हैं? He was calling it Catherine Bora. वो उसे जो है कैथरीन बोरा कहते थे। And Catherine Bora was his wife. जो कैथरीन बोरा है वो मार्टिन लूथर के पत्नी थी। So he's saying that this Galatians is as beloved as my wife. तो वो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो समझाना चाहते थे कि जिस प्रकार उनका जो पत्नी उनके लिए बहुत ही प्रिय है, वैसे ही ये गलातियों का पुस्तक भी उनके लिए बहुत ही प्रिय है। Yeah. So now we'll see chapter 4 verse 1. और हम आज चौथे अध्याय का पहला वचन से देखेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। So brothers and sisters, before this chapter, in chapter 3, the Apostle Paul was saying that by faith we become the sons of God. इससे पहले हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में जो है प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। Okay, so we become sons of God through our faith in Jesus Christ. और यीशु मसीह में विश्वास के कारण हम परमेश्वर के पुत्र माने जाते हैं। And we become Abraham's children
through our faith in Jesus Christ. और यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम अब्राहम के वंश के भागी भी हो जाते हैं। And if we are Abraham's children, then what Abraham has been promised, we will also get it. तो अगर हम अब्राहम के वंश के हैं, तो जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, उसके हम भी वारिस हैं। When a father has a property, it goes to his sons. जो संपत्ति पिता के पास होता है, वो बच्चों को मिलता है। That is called heirs. Heirs means the ones who are going to inherit the property or whatever. तो जो वारिस होता है, उसे जो भी पिता का संपत्ति है, वो उसे प्राप्त होता है। So we'll read at verse 29, this thing, Galatians chapter 3 verse 29. हम गलातियों का 3रा अध्याय और उसका 29 वचन पढ़ेंगे। और यदि तुम मसीह के हो, तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Okay, so through our faith in Jesus Christ, we are Abraham's children and we are heirs of his promises. और यीशु मसीह में विश्वास के कारण हम अब्राहम के वंश बने और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। But in verse 4 it says, as long as an heir is a child, he is not different from a servant or a slave. लेकिन हम 4थे अध्याय का पहला वचन में देखते हैं कि अगर वो वारिस है, अगर जब तक वो बालक है, तब तक वो एक दास के समान ही है। Though he is the owner of everything, but he is just like the servant. वो सब चीज का वारिस तो है, लेकिन फिर भी वो एक दास और उसमें कोई भेद नहीं है। We can think of one businessman who is very rich and he has got a very big house. हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जैसा एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा घर है। And he has got a son of 8 years old. और अगर 8 साल का बेटा है उसका। And then he has got many servants. और बहुत सारे दास भी हैं। Though he is the 8-year-old son of the rich man, he does not know about everything about his business and about his property and about many things. तो वो जो 8 साल का बालक है, वो जो है पिता की संपत्ति के बारे में और उससे कैसे प्रयोग करना है, इन सब बातों के बारे में वो ज्यादा नहीं जानता है। But it belongs to him. लेकिन वो उसका वारिस है। Because what belongs to his father belongs to him. क्योंकि जो पिता का है वो उसका है। But the servants there, they also don't know about the business and about the property and all. जो दास उधर काम करते हैं, वो भी उस बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। So this child also is same like the servant. तो हम देखते हैं कि दास और इस बालक में कोई भेद नहीं है। So verse 2. और दूसरा वचन, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। So then he is under managers and tutors and guardians till the time he grows up. और जब तक वो जो है बड़ा नहीं होता है, तब तक वो संरक्षक और प्रबंधकों के अधीन रहता है। So the Apostle Paul is saying that as believers, especially these Jewish believers, see in Galatia there were Jewish believers and Gentile believers. और जो प्रेरित पौलुस हैं, वो गलातियों के जो यहूदी विश्वासी भी थे उधर और गैर यहूदी विश्वासी भी थे, इन दोनों से वो बातें कर रहे हैं। And the Jewish people who were basically not believers, they were following the law. जो वहाँ यहूदी रहते थे और जो विश्वासी नहीं थे, वो जो है व्यवस्था के पीछे व्यवस्था का पालन करते थे। And they were following the laws of God. वो जो है परमेश्वर के नियमों को मानते थे वो। But they did not know what for the law was given. लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि किस उद्देश्य से परमेश्वर ने वो नियम दिया है। God had given them so many laws, but they were just keeping it.
वो जो है उसका पालन तो करते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि किस बात के लिए, किस उद्देश्य से प्रभु ने वो नियम दिया है। So he compares this Old Testament people as children who were under tutors because they had to follow the law, but they did not know why it was there. इसीलिए जो है प्रेरित पौलुस जो है इन यहूदियों को ऐसे लोगों के साथ उनका तुलना करता है जो संरक्षक और जो शिक्षक हैं उनके अधीन रहते हैं। वो जानते नहीं वो क्यों इन सब चीजों का पालन कर रहे हैं। This law is a schoolmaster is keeping them under control. जो ये जो नियम है वो एक शिक्षक के रूप में है जो उन्हें नियंत्रण में रखता है। See, when you for a 5-year-old or a 5-year-old child, boy or girl, when we tell don't take the knife and play with it. जब हम एक 5 या 6 साल के बच्चे से कहते हैं कि चाकू से मत खेला करो, or don't light a fire in the house with a candle and all. या मोमबत्ती लेकर उसे जलाया मत करो। We say that because it will be safe for them. इस चीज से वो सुरक्षित रहने के लिए हम इन बातों को उन्हें समझाते हैं। That's why we give them a law and a instruction. इसलिए हम उन्हें नियम देते हैं। But do they understand it? क्या वो समझते हैं इसको? They are children, so they feel attracted to these things and they want to do it. वो बच्चे हैं और इसके और वो आकर्षित होते हैं। Similarly, the law was given so that they should not commit adultery, you must not steal, you must not kill, you must not tell a lie. All these were laws given so that they will, but they did not know. They did not know the full reason of it. It was attractive to them to do all these things. जो भी नियम प्रभु ने दिया था यहूदियों को कि व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, तो ये जो नियम प्रभु ने उन्हें दिया था उनका पालन तो वो समझते नहीं थे क्यों प्रभु ने ये सब, इसके पीछे क्या उद्देश्य है उनका। See, we can say that they know that these are sins. वो जानते थे कि ये पाप है, but they don't know how a mature person understands it. लेकिन वो एक जो परिपक्व व्यक्ति है जैसा समझेगा वैसे वो नहीं समझते थे। So the Apostle Paul, why he is telling them? Because now these Gentile believers, they also want to follow this law. क्योंकि वो जो गैर यहूदी विश्वासी थे वो भी जो व्यवस्था के पीछे चलना चाहते थे। The Gentiles. हाँ, that's गैर यहूदी जो विश्वासी थे वो भी ऐसे ही व्यवस्था के पीछे चलना चाहते थे। They are going to this religion where the schoolmaster is there and they had accepted Christ and they had become sons of God, but they are going towards childhood. वो जो है अभी वो बड़े हो गए थे और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया था और नियमों का पालन उन्हें नहीं करना था, लेकिन वो उसी जो यहूदी लोग करते थे उसी के पीछे वो भी चलना चाह रहे थे। So other thing is, brothers and sisters, when we don't follow the Lord wholeheartedly, जब हम पूरे दिल से प्रभु का पीछा नहीं करते हैं, then we are also under some sort of law. तब हम भी किसी नियम के अधीन हैं। Maybe in the church you may hear the brothers sharing something and then you say, oh, I should not do that. हम जो हैं भाई लोगों से सुन सकते हैं कि किसी चीज के बारे में वो बताते हैं, तो फिर हम अपने मन में हम सोचते हैं हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। Don't gossip or don't talk ill about others. किसी के बारे में बुराई मत करो, ऐसे बातें हम सुनते हैं। Forgive people. क्षमा करो लोगों को। And so many other things. ऐसे बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। But we hear it and this is just like a law for us. और जब हम इसे सुनते हैं हमारे लिए ये एक नियम के रूप में बन जाता है। Because we don't understand the implications of it. हम इसको रखने से हमें क्या फायदा हो सकता है
इसे हम नहीं जानते। So he says that we are like children. तो हम बच्चों के समान बन जाते हैं। So even though we are sons, हम पुत्र हैं, लेकिन हम दास के रूप में हम अपना व्यवहार करते हैं। Bible says when we are babes in Christ, then the law, we are still under law. तो वचन में कहा गया है कि जब हम बालक हैं तब हम नियम के अधीन हैं। Verse 3. तीसरा वचन, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। So then there are these things in Colossians chapter 2 verse 20 and 21. कुलोसियों का पुस्तक दूसरा अध्याय और उसका 20 और 21वां वचन। These are called the elementary principles of the world. जो प्राथमिक सिद्धांत हैं इस दुनिया के, वो उसके बारे में कहा गया है 20वें और 21वें वचन में। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना? Yeah, so this do not touch, do not do not taste, and all these rules. There are so many other rules like that which are there, which we can be under. तो ऐसे बहुत सारे नियमों के अधीन हम हो जाते हैं, जैसे यहाँ कहा गया है कि छूना नहीं, चखना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। ये सब बातों के अधीन हम जीवन बिताते हैं। So on one side we have the law of Moses, which is found in the 5 books of the Old Testament. जो पुराने नियम के जो 5 पुस्तक है, पहला 5 पुस्तक जिनमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं। And then we have these elementary principles like do not touch, do not taste, etc. और बहुत सारे ऐसे प्राथमिक जो विधियां हैं जिसके अधीन हम अपने आप को कर देते हैं। So when we are under these laws, then we are just like a child. तो जब हम ऐसे जो विधियों के अधीन हमें अपने आप को कर देते हैं, तो हम बच्चों के समान बन जाते हैं। But when we are listening to the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा का सुनते हैं, then we are not under law. तो हम नियम के अधीन नहीं हैं। There's a wonderful verse in 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस का दूसरा अध्याय में एक बहुत ही सुंदर वचन है, verse 16. और उसका 16वां वचन। This is a wonderful word which, if we apply rightly to our life, it will really make us a very, very free person. अगर हम इसको ठीक तरह से अपने जीवन में लागू करेंगे तो ये बहुत स्वतंत्र करने वाला वचन है। 1 Peter chapter 2 verse 16. पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 16वां वचन। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। Yeah. So act as free men. Do not use this freedom as a covering for evil. अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। But as bond slaves, as bond slave of Jesus Christ, we act as free men. लेकिन हम यीशु मसीह के दास समझकर अपने आप को स्वतंत्र रूप में हम अपने आप को का चाल चलन चलते हैं। So we read verse 4. और अभी हम Galatians 4:4. गलातियों का चौथा वचन पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। So this law had kept the Old Testament people like a children, and they needed this schoolmaster always. But at the right time, God sent His Son so as to make things different. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो यहूदी लोग हैं उन्हें एक शिक्षक के अधीन रखा, जो नियम है, व्यवस्था है,
उसको एक शिक्षक के रूप में उनको नियंत्रण में रखने के लिए प्रभु ने रखा। लेकिन जब समय पूरा हुआ, जब प्रभु का समय आया, तब उन्होंने अपने बेटे को भेजकर उन्हें उसके अधीन से मुक्त किया। See, God's time it was planned before the foundation of the world. जो परमेश्वर का जो योजना थे, वो जो इस संसार के नींव के डालने से पहले ही उन्होंने ये योजना बनाई थी। And at the particular time which he decided, Jesus came. It says, born of a woman, so that he will be like us. परंतु जब समय पूरा हुआ परमेश्वर की योजना के अनुसार, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। And born under the law. और वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। So that he will be in subjection to the law which he himself gave. तो ताकि वो उस व्यवस्था के अधीन रहे जिस व्यवस्था को उन्होंने ही बनाया था। He was God, he gave the law. पर वो परमेश्वर थे और वो परमेश्वर हैं और उन्होंने ही ये जो व्यवस्था है बनाया। And he was under that law. और उन्होंने अपने आप को उस व्यवस्था के अधीन किया। So if he was under that law, did he keep that law? जब वो उसके अधीन थे, क्या उसने उसका पालन किया? If he did not keep that law, he would be a transgressor. अगर वो उस जो नियम का पालन नहीं करते, तो वो एक जो है गलत काम करने वाला बन जाते। But we know that he did not. He was pure and he did not commit a single sin. He kept the law. लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, उन्होंने सभी नियमों का पालन किया। Then verse 5. और 5वां वचन, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। So here there is one great truth. यहाँ एक बहुत ही बड़ा सत्य है। See, Jesus did not come, brothers and sisters, Jesus did not come only to forgive our sins. यीशु मसीह सिर्फ हमें अपने पाप क्षमा के लिए वो नहीं आए। See, that is one thing that he did. He purchased us so that he redeemed, means he died for our sins so that he purchased us so that we will be free from sin. उन्होंने हमें छुटकारा दिया और उन्होंने अपना लहू बहाया और इसके कारण हमें उस जो पाप है उससे हमें छुटकारा दिलाया। We all know about it. हम सब इसके बारे में जानते हैं। Ephesians 1:7 says that. जो इफिसियों का पहला अध्याय और उसका 7वां वचन ये कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। So we all know about it. हम सब इसके बारे में जानते हैं। But the gospel does not end there. लेकिन जो सुसमाचार है वो वहाँ ही उसी से खत्म नहीं होता है। Because he also redeemed us from the curse of the law. उन्होंने हमें छुटकारा जो है पाप या जो नियम या व्यवस्था के शाप से भी हमें छुटकारा दिलाया। Galatians 3:13. वो हम गलातियों का 3रा अध्याय और उसके 13वें वचन में पढ़ते हैं कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। So Jesus also redeemed us from the curse of the law. तो यीशु मसीह ने हमें जो व्यवस्था के शाप है उससे भी हमें छुटकारा दिलाया। What is the curse of the law? जो व्यवस्था का शाप क्या है? So Galatians 3:10 says. गलातियों का 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन ऐसे कहता है कि इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है।
So, as per the law, if you keep the law, you're innocent. But even if you break one law, you're cursed. क्योंकि व्यवस्था का के अनुसार ये नियम है कि अगर हम एक जो नियम है उसका भी हम उल्लंघन करेंगे तो हम शापित हो जाते हैं. So all of us, whether it is Jews or Gentiles, if we break one law, we are cursed actually, according to the standard of the law. तो जो व्यवस्था के अनुसार जो है, अगर हम एक भी नियम को तोड़ते हैं तो हम शापित माने जाते हैं. So if you read, we'll read one verse, but there are two verses, you can note it down. It is found in Deuteronomy chapter 27 verse 26 and Jeremiah 11 and 3. We'll read Jeremiah 11 and 3. हम दो वचन है जो ये हमें समझाता है. वो एक तो है व्यवस्था विवरण 27-26. 27 का 26 और दूसरा है यिर्मयाह 11:3. 11 का तीसरा वचन. हम यिर्मयाह 11 का तीसरा पढ़ेंगे. Here it says that if we break the law, we are cursed. तो यहाँ हम उस वचन से समझ सकते हैं कि अगर हम जो नियम का उल्लंघन करेंगे तो हम शापित हैं. उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने. Okay, so and Jesus became a curse for us. और यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक शाप बन गए. It says in Deuteronomy 21 verse 23. व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय और 23 वचन में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं. व्यवस्था विवरण 21 का 23. तो वह शव 21-23. तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहराता है. इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना. So brothers and sisters, Jesus took our sin, all our sin, and even though he did not commit a single sin, he took our sin and he died the criminal's death and he was hung on the tree. तो हम भाइयों और बहनों देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारा सारा पाप अपने ऊपर ले लिया और वो लटकाया गया और हमारे लिए वह एक शाप बन गया. So all the curses which were supposed to come to us was taken by Jesus. जो भी शाप हमारे ऊपर आना था वो सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया. And he has freed us. और उन्होंने हमें छुटकारा दिलाया. He was punished for our sins, including the sins and the curses, and he died for us. That's how he has taken away the curse of the law. तो वो हमारे पापों के लिए और हमारे शापों के लिए भी वो मारे गए और इस प्रकार उन्होंने हमें उस शाप से हमें छुटकारा दिलाया. He who kept the law and was not supposed to be cursed became a curse for us. जिन्होंने नियम का पालन किया और वो हमारे लिए शापित ठहराया गया. So that there will be no curse now for our lives. तो हमारे जीवन के ऊपर कोई भी शाप नहीं है. So now there is more truth in that. It will take time for explanation, but this is what it means about redeeming in Galatians chapter 4 verse 5. गलातियों 4 का 5वां वचन में ये सत्य हम समझ सकते हैं और इसका बहुत सारा गहरा अर्थ है, लेकिन उसको बताने में समय लगेगा. And when we are under the law, we are under a bondage. और जब हम व्यवस्था के अधीन हैं तो हम एक दासत्व के अधीन हैं. Why? Because we cannot keep everything. क्योंकि हम सब
नियमों का पालन नहीं कर सकते। So there is a fear within us that I may not be able to keep everything. तो हमारे अंदर ये भय पैदा होता है कि मैं इन सब बातों का पालन नहीं कर पाऊंगा। So that is not freedom, that is a bondage. तो हमारे लिए वो स्वाधीनता लेकर नहीं आता है, लेकिन वो एक दासत्व के रूप में बन जाता है। So who has got bondage and who has got fear? It is slaves and servants. जो दास होते हैं उन्हीं लोगों के दिल में ये जो स्वतंत्रता नहीं होती है। So God wants to make us sons. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि वो हमें पुत्र और पुत्री बनाए। So through Jesus Christ, He has given us adoption as sons. तो उन्होंने हमें परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा लेप पालकपन का जो आत्मा है वो दिया है। The Gentiles were out of God's plan, but now He has made us also sons, just like the Israelites. जो गैर यहूदी हैं वो जो परमेश्वर की योजना के बाहर थे, उनका उसमें कोई भाग नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें इसका सहभागी बनाया है। So both Jews and Gentiles who have faith in Christ have got the adoption as sons. जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, दोनों को जो है वो लेप पालकपन का आत्मा प्राप्त हुआ है। And because we are His sons, God has given the Holy Spirit into our hearts so that we can call Abba Father. तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें जो लेप पालकपन का जो आत्मा है वो दिया है, जिसके कारण हम परमेश्वर को पिता या आबा करके हम पुकारते हैं। So God has given the Holy Spirit to everyone who accepts Christ or believes in Christ. जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा दिया है। And He has made us sons so that we can call Abba Father. और हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाया है ताकि हम उन्हें जो है पिता या आबा करके हम पुकार सकते हैं। Brothers and sisters, do we have this freedom and the lack of confidence when we go to the Heavenly Father? क्या हमारे अंदर हम जांच कर देख सकते हैं कि क्या हमारे अंदर वो धीरज है हमारे अंदर कि हम पिता या आबा करके परमेश्वर को पुकार सकते हैं? Or are we still having that bondage and fear when we come towards God? क्या हमारे अंदर भय है और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हम अपने आप को जांच कर देखें। Verse 7 says, और 7वां वचन, इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। Apostle says, now you are no more a slave. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं तू अब दास नहीं but a son, परंतु पुत्र है। and then we are heir of God. और परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हैं। We said about we have an heir of Abraham's promises. तो हमने देखा कि हम अब्राहम के जो वायदे हैं उसके भी वारिस हैं हम। So heir of God means what God has, in the kingdom of God, whatever there is, that is ours. परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए है, हम वारिस हैं उसका। In the kingdom of God there is righteousness, peace and joy. परमेश्वर के जो राज्य है उसमें righteousness, धार्मिकता, peace and joy, शांति और प्रेम है। That becomes ours. ये सब हमारा हम इसके वारिस बन जाते हैं। All the promises of God which are there, which God has given, that becomes ours. जो भी वायदे हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं वो सब हमारा बन जाता है। And we are no more slaves. और अभी हम दास नहीं हैं। Romans 8:15 also says, रोमियों का 8:15 भी यही कहता है। This is one thing which you should really experience in our life. ये ऐसी एक बात है जिसे हमें स्वाभाविक रूप से हमें उसका अनुभव होना चाहिए। Romans 8:15. रोमियो 8:15
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे आबा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। So you're not received a spirit of slavery again. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। Brothers and sisters, when we are like child and when we are under the law, then there is a spirit of bondage in us. जब हम एक बालक के रूप में हैं या दास के रूप में हैं, तब हमारे अंदर वो दासत्व की आत्मा है। So there is bondage and fear within us. तो इसके कारण हमारे अंदर दासत्व है और भय भी होता है। But it should not be like that. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। All of us who have been born again and who accept Christ, we must live confidently before God. जिन्होंने भी पुनर्जन्म पाया है, जिन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया है, हमें वो जो स्वतंत्रता हमें अनुभव होना चाहिए। If we are not living like that, then we are still children who needs laws and tutors. तो अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम बालक ही हैं और हमें जो है शिक्षक और जो नियम का जरूरत हमारे लिए जरूरी है। And we do not know the real reason for those laws. और हम इन नियमों का जो उद्देश्य है उसे हम नहीं जानते। We are following them because somebody has told us. और हम इसका पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने हमसे कहा है। It is not what God wants, the way we should live. लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम ऐसा जीवन जिए। He wants us to live as sons. वो चाहते हैं कि हम पुत्र या पुत्री के समान जिए। When we go to Him in prayer, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, we are going to meet one person who is delighted with us. तो हम ऐसे एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो हमें देखकर आनंदित होता है। Just like our children can come to us confidently. जिस प्रकार हमारे बच्चे हमारे पास आ सकते हैं धीरज के साथ। And then we also want to, when we meet our parents, we go happily. जब हम अपने माता पिता से मिलते हैं तो हम खुशी से जाते हैं। So every time whenever we want to meet our Heavenly Father, we want to joyfully and confidently be with Him. जब हम अपने स्वर्गीय पिता से मिलने जाते हैं तो हम खुशी से और आनंद से उन्हें मिलने जाते हैं। Brothers and sisters, in some way I am experiencing this. और भाइयों और बहनों में एक छोटी सी रीति में इसका अनुभव कर रहा हूँ। I want to increase it. I want to keep on increasing more and more in my life. और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें और भी आगे बढ़ूँ। And I am experiencing the freedom which says in 1 Peter chapter 2 verse 16, act as free men. तो जैसे पहला पत्रस का दूसरा अध्याय में कहा गया है कि हमें स्वतंत्र जन के रूप में हमें चलना चाहिए। And we know the reasons that God, we know because we are sons, we know the kingdom of God, we know the things that God is telling us. और क्योंकि हम इस जो स्वर्गीय राज के भागी हैं, हम जानते हैं उन बातों को जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। It is not because some brother or some mature brother is telling that, okay, we are learning new things, of course. ये इसीलिए नहीं क्योंकि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमें समझाता है, हम सीखते हैं लोगों से, लेकिन हम परमेश्वर से हम इन बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। We are listening to what the Holy Spirit is telling us. और हम जो पवित्र आत्मा हमसे कहता है उससे हम सुनते हैं। Galatians 5 says, if we are walking in the Spirit, we are not under the law. क्योंकि जो गलातियों का 5वां अध्याय में कहा गया है कि अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम walk in the Spirit, we are not under the law. तो हम जो है व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। So brothers and sisters, we'll end here. We have only come up to 7. तो आज हमने सिर्फ 7वां वचन तक हमने अध्ययन किया है। But go through these verses and meditate on it. तो आप इन बातों को अध्ययन करें और इसे और भी समझें। And may God continue to speak to us. और परमेश्वर हमसे बातें
करते रहें।